So today's session will be related with, yes, good afternoon Vikas, good afternoon everyone. So yesterday we have discussed about the fundamental analysis, what are the criterias which we are basically using for doing analysis of any company. We have decided some 5 criterias, and on the basis of that 5 criterias we are going to analyze any of the company that we have already studied yesterday. So today we are going to have discussion on how to identify such stocks, or how to find out major stocks from the companies which are listed in the market. So yesterday we have seen many of the companies, some of the examples I took, some of the examples you have given, and we both analyzed that companies on the basis of our 5 criterias. Can anyone tell me what are the 5 criterias? Let us discuss one by one. That will be a revision also. Then I will be going practically to how to find out such companies. That also we will be learning. Very good. Vaishnavi is saying ROC. The criteria number 1 which we have discussed was return on capital employed. Very good, very good. Return on capital employed should be greater than 15%. Number 2 was return on equity capital should be greater than 15%. So both of this ROCE and ROE should be greater than 15%. Yes, all of you are aware about what we have discussed yesterday. Very nice, very nice. The third condition which we have discussed was the pledge percentage should be less. It should be 0, or it should be basically less, yeah, close to 1 or 2 will be acceptable. If it is 0, then it is proper for the organization. Even if it is not 0, and if it is 1 or close to 1, it is okay, no issue in that. Next was our important point, which was debt to equity ratio, and the debt to equity ratio should be लेस देन 1. तो डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए? 1 से कम होना चाहिए. ये हमारे कंडीशन थे, राइट? तो हमने ये सारे कंडीशन कल पढ़ लिए थे. जस्ट 1 सेकेंड. सो ये सारे कंडीशन हमने येस्टरडे वी हैव डिस्कस. प्रमोटर्स होल्डिंग शुड बी more than 50%. That also we have studied. And this 5 criterias are very, very important. There are other points also which we have discussed, but this 5 criterias I personally follow. That's why we have already discussed that 5 criterias. Now there was a problem yesterday. We have discussed some of the companies, but that some of the companies was given by me, some of the companies you all suggested, and we tried to analyze both these companies in a better way as per the criteria which we have studied yesterday. But how to identify from the major stocks which are listed in the market, which are those stocks which fits in our criteria? आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जितने भी क्राइटेरिया हमने कल डिस्कस किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्राइटेरियाज हाउ टू फाइंड आउट सच कंपनीज from the 2000 to 3000 stocks which are listed in the Nifty 50 and BSE. Is there any method which we can apply for this? It becomes very difficult if you track 1111 stock and try to find out from that ki whether this stock is fitting in our criteria or not, whether this stock is fitting in our criteria or not, and it will require a lot of time to do this exercise. For that purpose, today we will be having a practical session on screener, which yesterday also we had. But yesterday हमने क्या किया था कि हमने हमारे बेस पे कंपनीज को उस स्क्रीनर में इन्फॉर्म करके उसके बाद उसका डेटा स्टडी किया था. बट आज हम क्या करेंगे? आज हम कुछ ऐसा स्कैनर बनाएंगे. तो टुडे वी विल बी लर्निंग हाउ टू प्रिपेयर अ स्कैनर so that
if we know how to prepare a scanner that we are going to learn today, and on the basis of that scanner, by single click, all the information from 2000 to 3000 companies, whichever companies is fitting in our criteria, that will come on your screen. Is it sounds interesting? एक झटके में अगर आपको क्विकली एनालिसिस हो जाए एंड एक क्लिक पे अगर आपको 2000 से 3000 कंपनीज का डेटा स्कैन करके मिल जाए, और वही कंपनीज आपको मिलेगी जो कंपनीज हम उसमें जो क्राइटेरिया डालेंगे वो ही क्राइटेरिया के बेस पे वो कंपनीज होगी। मतलब कि जितना भी नॉइज़ होगा, दैट नॉइज़ विल बी absolutely removed from that, and the scanner will show us only such companies which we want to look at or which we have given the criterias. Are you eager to learn this interesting scanner today? Yes, Vaishnavi, thank you very much. Yes, Shreya, Yogesh, everyone. Okay, so that also we will be learning. So that points also we are going to learn today, that by scanning single company or by putting one company's data in the screener.in, it becomes very difficult because you won't be able to track the majority of the companies, and we will be lacking somewhere behind with those persons who have some extra knowledge in the market. For that purpose, today's part will be related with how to prepare that scanner. We all together will prepare the scanner. Then I will be also giving you the link of the scanner, so that जिनको भी ये स्कैनर प्रिपेयर करने नहीं आएगा, जिनको भी ये स्कैनर बनाने में प्रॉब्लम लगता है, वो सारे लोग जो स्कैनर मैं आपको भेजूंगा वो भी आप यूज़ कर पाएंगे. So we will be learning this in a practical way, how to put conditions and how to run the query, how to find out stocks from that, and after finding out stocks from that, the other part also, एक छोटा सा पार्ट भी आज हम कवर करेंगे, and that will be related with your basics of the technical analysis. That also we will be learning a little bit. I will throw a little Good afternoon, bit light sir. on the Sorry to technical disturb you. analysis concept also. That also Sir, I will be just learning. want to confirm tomorrow would be an offline session, right? Right? So first of all, since we have studied yesterday that there are some criterias which we should have for analyzing any company, because everyone has lot of criterias. If we mix up everything, then we will be creating lot of confusion in the minds, and at the end of the day we won't be able to justify, or we won't be able to track the market in a better way. So that's why we have decided to follow these 5 criteria which we have already discussed, and that is ROCE, return on capital employed, ROE, return on equity capital, the pledge percentage, the debt to equity ratio, and the promoters holding. All these criteria will be the base model for us, and any of the company which we want to track, we will be tracking that if whether the company is fitting in this criteria or not. So yesterday we have already discussed that. So now, without wasting much more time, let us try to discuss how to prepare a scanner as per the conditions which we have learned yesterday, and I will be also giving you some 2 different scanners also, which can be also used for finding out some momentum stocks and all those criterias. But basically, first of all, मैं आपको स्कैनर दूंगा वो तो सही है, लेकिन आप अपने बेस पे स्कैनर कैसे बनाएंगे वो आज हम प्रैक्टिकली बनाना सीखते हैं. तो सीधा चलते हैं, स्क्रीन शेयर करता हूँ, एंड देन वी विल डायरेक्टली गो टू द ऐप, directly go to the website, and accordingly we will be finding out how to analyze a specific stock, and from the majority of the stocks how to identify that whether this stocks fits in our criteria or not, because as we have already seen बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर हम एक एक स्टॉक को डिस्कस करते रहेंगे तो, राइट.
और आपको भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा प्रैक्टिकली जब आप एक एक कंपनी को डिस्कस करेंगे या एक कंपनी को एनालाइज करना चाहेंगे. सो फॉर दैट पर्पस ऐसा कुछ टेक्निक यूज़ करके we will be able to save our time and we will be able to track the market in a better way. This perspective will help you a lot, and then after completing all these factors we will be going towards the basics of the technical analysis, because that is also an important part which we are going to learn today. So I am sharing my screen now. Just tell me whether the screen is visible to you or not. Yes, thank you very much. Before asking, you all are clever students. Yeah, you all have started replying that. Okay, thank you. ठीक है चलो. Fine. So this is the website of Screener, and quickly within 2 minutes what we have studied yesterday, एक कंपनी डिस्कस करेंगे, and after discussing one company directly I will show you how to prepare a scan, right? So let us start discussing one company. तो हमने एक कंपनी लेते हैं, चलो एक बड़ा सा कंपनी लेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज. सो रिलायंस इंडस्ट्रीज आई हैव टेकन. Reliance Industries, yes. So the condition number 1 which we have learned was ROCE, return on capital employed, should be greater than 15%. It is not. So as per our criteria it is not fulfilling, no problem. ROE should be greater than 15%. it is not. इतना बड़ा कंपनी होके भी देखो ROCE और ROE जो है वो कम है. Then the pledge percentage is 0, it's okay. Debt to equity ratio less than 1, it is okay. Promoter percentage is 50.3%, it should be more than 50, तो it's okay. 50% है. तो हमारा क्राइटेरिया था कि हमने कल डिस्कस किया था 5 में से अगर आपके 3 को भी टिक मार्क आ जाता है तो हम उसके बारे में सोच सकते हैं. ये आपने कल पढ़ा था, राइट? एंड from 5, if 3 criterias are fulfilling, then we can shortlist such kind of companies. Whether to buy this or not, that is a different question, because fundamental analysis will just tell you which companies should be shortlisted as per the financial performance of the company based on the different criterias. But technical analysis will tell you what will be the best price to enter that company. That is the major difference between fundamental and technical. That is why majority of the people are not trying to use the fundamental analysis. They find it very difficult to analyze the profitability. They find it very difficult to analyze the P&L and balance sheet of the company. They just go with technical analysis. So that also I will be teaching you, that also we will be learning, and then you decide accordingly ki what will be the best method for you to enter any kind of stock or try to do analysis of any kind of stock. Whether we can do only technical analysis, my answer is yes. Whether we can do only fundamental analysis, yes, the answer is yes. Or whether we can go for fundamental as well as technical, that the answer is yes. मतलब सभी में आंसर yes है. आपको ये ढूंढना है कि आपके लिए क्या सूटेबल होगा, तो वो अभी हम सीखेंगे एग्जैक्टली कि अभी तो हमने रैंडमली कंपनीज डाले हैं इसमें. सर्च ऑप्शन में वी आर पुटिंग रैंडम कंपनीज, राइट? लेकिन ये रैंडम कंपनीज का ये जो स्कैनर हम कैसे बना पाएंगे, हाउ टू प्रिपेयर द स्कैनर, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. तो मैं 2-3 बार रिपीट करूँगा. आप अपने पास एक बुकलेट रखिए, लिख के रखिए, बिकॉज दिस विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग दिस, राइट? सो आपको डिफिकल्ट ना लगे. सबसे पहले हम स्क्रीनर का जब वेबसाइट खोलेंगे, so whenever we will have the website of Screener, the options comes on the top. Option number 1 is feed, option number 2 is screens, and option number 3 is tools. So these are the 3 options available with you in the website of screener.in. अभी हमको करना क्या है, बहुत simple technique we are using. We are going to click this screens. If we click these screens, there are already some popular themes over here. बहुत सारे popular themes already इधर है. You can use this popular themes also, but try to
think on using all this, because normally what happens, we are using sometimes this capacity expansion, we are sometimes using debt reduction, we are sometimes using companies creating new high, we are sometimes using FII buying, and we all are confused because आप लोग क्या करेंगे, हर बार कुछ अलग अलग टेक्निक यूज़ करेंगे और फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा माइंड में. तो दैट इज़ द रीज़न आपको ये सारे थीम्स को यूज़ नहीं करना है. अभी ऊपर देख सकते हैं आप यूअर स्क्रीन्स, ये आपको नहीं दिखेगा बिकॉज ये आप लोग जब अपनी वेबसाइट खोलेंगे तब आपको इसमें नहीं दिखेगा, ये मैंने बनाए हुए हैं. तो अभी हम ये सीखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर यूअर स्क्रीन्स, बिकॉज practically when we prepare our screens we have a lot of confidence on our screens because we have worked a lot for preparing the screens, because we have done the analysis, we know what we are doing, and accordingly if we identify stocks as per our screens then that will help you. मॉडर्न पोर्टफोलियो क्या है, दैट ऑल्सो आई विल डिस्कस. मोमेंटम इन्वेस्टिंग मंथली क्या है, दैट ऑल्सो आई विल डिस्कस. एंड अभी हम ये भी सीखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर अ न्यू स्क्रीन. तो are you all excited to learn this? So let us start then how to learn this, या how to prepare your own scan. ठीक है, चलो क्या करना है ध्यान से देखना. अभी मैं एक एक चीज़ स्लोली बताता हूँ. इट्स बेटर इफ़ यू राइट दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक क्रिएट न्यू स्क्रीन. आपको क्रिएट न्यू स्क्रीन पे क्लिक करना है. आप स्टेप्स लिख के रखिए, दैट विल हेल्प यू. स्टेप नंबर वन क्रिएट न्यू स्क्रीन पे क्लिक करना है. देन दिस विल बी दी ओवरऑल पॉइंट्स विच विल बी डिस्प्लेड. द पॉइंट इज क्रिएट अ सर्च क्वेरी. दिस इज द टेक्स्ट बॉक्स ओवर हियर. कस्टम क्वेरी एग्जाम्पल दे हैव गिवन टू यू कि हाउ टू राइट द कंडीशंस. तो वी ऑल आर गोइंग टू राइट द कंडीशंस ओवर हियर and you write it in your book, because if you have login from your mobile it will be difficult for you to do it in a practical way now. So after completing our lecture you try to do it practically also, but or otherwise if you have laptop with you, you log in with your laptop and use your mobile phone for doing whatever I am going to do now, right? तो हमने कल 5 कंडीशंस पढ़े थे, राइट? हमने जो 5 कंडीशंस पढ़े थे वही 5 कंडीशंस को हम यहाँ पे डालेंगे, और एक कंडीशन में एक्स्ट्रा डालूंगा. कंपनीज काफ़ी सारे आ जाएंगे 5 इसमें, तो हम और एक कंडीशन डालेंगे ताकि हम जो एकदम पेनी स्टॉक्स है या एकदम छोटी छोटी मार्केट कैप की कंपनी है वो छोटी कंपनीज हमारे लिस्ट में आए ही नहीं. तो हम थोड़ा सा वो भी एक कंडीशन डालेंगे, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर अस टू एनालाइज दोज कंपनीज. देखो करना क्या है. सबसे पहले हमारा कंडीशन क्या था. आवर कंडीशन नंबर 1 वॉज the return on capital employed should be greater than 15%. ठीक है, what was the condition? The return on capital employed was greater than 15%. तो यहाँ पे आपको लिखना है RETURN. तो यहाँ पे नीचे सब बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे. तो इसमें से हम एक सिलेक्ट करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. तो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया. इसके बाद आपको क्या करना है, ग्रेटर देन का साइन डालना है. आफ्टर पुटिंग ग्रेटर देन साइन आपको लिखना है 15. ठीक है, आपको करना क्या है, बहुत सिंपल. आपको रिटर्न ऑन कैपिटल लिखना है. रिटर्न ऑन कैपिटल लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको ग्रेटर देन का साइन डालना है. ग्रेटर देन का साइन डालने के बाद आपको क्या करना है, 15 लिखना है. 15. इज इट क्लियर दिस मच? कंडीशन नंबर 1 डन. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर दैन 15%. इसके बाद आपको एंड लिखना है. एंड डोंट फॉरगेट टू राइट एंड, वरना एक ही कंडीशन हो जाएगा. एंड लिखने के बाद आवर सेकेंड कंडीशन वॉज रिटर्न ऑन इक्विटी. रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी ग्रेटर दैन, अगेन 15 लिखना है. कंडीशन नंबर 2 इज क्लियर टू एवरीवन? First condition, return on capital employed should be greater than 15. Second condition, return on capital employed, return on equity capital या return on equity should be greater than 15. Then again we have to write and. जैसे ही आप and लिखेंगे हम नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा.
इतना समझ में आया? एवरीवन क्लियर विद दिस मच? अगर किसी को कुछ डाउट है तो अभी पूछो, बिकॉज ये जब तक नहीं समझेगा आपका फिर रन क्वेरी रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, योगेश इज सेइंग यस, श्रेया इज सेइंग यस, काजल सेइंग यस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट वॉज प्लेज परसेंटेज। तो प्लेज परसेंटेज इज इक्वल टू 0। मैंने 0 डाल दिया है, प्लेज परसेंटेज हमारा 0 होना चाहिए। तो प्लेज परसेंटेज इज इक्वल टू 0, फिर उसके बाद आपको एंड लिखना है। आप ये 0 के जगह पे प्लेज परसेंटेज 1 भी डाल सकते, तो थोड़े से जो प्लेज ज़्यादा है वो भी कंपनीज डिस्प्ले हो जाएगी, राइट। उसके बाद हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो था, तो डेट टू इक्विटी रेशियो शुड बी लेस देन 1। डेट टू इक्विटी रेशियो शुड बी लेस देन 1 एंड उसके बाद हमारा कंडीशन था प्रमोटर्स होल्डिंग। तो प्रमोटर होल्डिंग शुड बी ग्रेटर देन 50। प्रमोटर होल्डिंग शुड बी ग्रेटर देन 50, राइट। इतने सारे कंडीशंस हमने कल पढ़े थे। वी हैव स्टडीड दिस कंडीशन यस्टरडे। तो ऑल दिस कंडीशंस डालने के बाद और एक कंडीशन डालेंगे, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज आ जाएगी, तो थोड़ा सा और शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन मार्केट कैपिटलाइजेशन का कंडीशन डालते हैं। वो क्या है कि देर आर मेनी कंपनीज इन द मार्केट। तो छोटे छोटे कंपनीज भी है, पेनी स्टॉक भी आ जाएगा फिर। तो हम क्या करेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन को थोड़ा सा पॉइंट को कंसिडर करेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी ग्रेटर दैन 1000, ठीक है। मतलब 1000 करोड़ से ज़्यादा बड़ी कंपनीज जो रहेगी वही हमारे कैलकुलेशन में आएगी। तो आफ्टर पुटिंग ऑल दोज कंडीशन हमको रन क्वेरी करना है। अब ये रन क्वेरी में देखो, अगर कुछ गड़बड़ रहेगा तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आ जाएगा। अभी गड़बड़ क्या है, व्हाट इज़ रॉन्ग, ये कह रहे हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन का पॉइंट जो है वो रॉन्ग हो चुका है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में कुछ रॉन्ग हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन को यहाँ चेंज कर लेते हैं। जब तक ये सही नहीं होगा तब तक आंसर नहीं आएगा। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन में कुछ रॉन्ग है तो इसको निकाल देते हैं। अभी निकाल दिया, ठीक है। अभी हमारा कुछ गलती था। प्रमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन 50, मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने डायरेक्ट कंडीशन लिखा। एक चीज हम भूल गए, एंड दैट वाज एंड। देखा कितना इंपॉर्टेंस है एंड का, कितना इंपॉर्टेंस है एंड का। अब हम लिखेंगे फिर से मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ग्रेटर देन 1000। अभी हम रन क्वेरी कर देंगे। हो गया रन क्वेरी? क्लियर हुआ सबको? अब रन क्वेरी करने के बाद देयर आर डिफरेंट कंपनीज ओवर हियर, डिफरेंट डेटा is displayed and we have total 113 companies. That means out of that 3000 to 4000 companies which are listed, उसमें से ऐसे 113 कंपनीज हमारे सामने आए हैं जो हमने क्राइटेरिया रखा था उसके बेस पे। इज इट क्लियर दिस मच एवरीवन? इंटरेस्टिंग है? इंटरेस्टिंग है? यस, थैंक यू। अभी देखो करना क्या है, इसमें इतने सारी कंपनीज हमारे पास आई है। रिमेंबर स्टूडेंट्स, अभी तक हमको इन सारे कंपनीज को कोई भी बाय के बारे में नहीं सोचना है। अभी हमने क्या कर लिया, वी हैव डन द शॉर्ट लिस्टिंग फ्रॉम दोज 3000 to 4000 स्टॉक्स, कि out of this 3000 4000 stocks, these 113 companies are fundamentally strong companies. That is the main goal, that is the main purpose of deciding this or preparing this query or running this query or preparing this kind of scanner. तो हमको बहुत सारी इसमें कंपनीज आई है
इसमें से कुछ कंपनीज ऐसे होंगे जिसके नाम भी आपको पता नहीं होंगे, कुछ कंपनीज ऐसे होंगे जिसके नाम आपको पता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो वी हैव द कंपनीज ओवर हियर, रूपा इंडस्ट्रीज, अंसल हाउसिंग, ऐसे कुछ कंपनीज है जिसके नाम हमें पता नहीं है, बट ऐसी भी कुछ कंपनीज होंगे जिसके नाम आपको पता होंगे। तो बहुत सारी कंपनीज हैं। हम जैसे जैसे यहाँ से नेक्स्ट पेज पे जाएंगे वैसे वैसे हमको नेक्स्ट पेज पे डिटेल जो है वो मिलते जाएगा। अगर हम एक पेज पे 50 कंपनी को देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे 50 अगर प्लेस करूँगा तो हमारे पास एक साथ 50 कंपनीज आ जाएंगे। सो ये मेरे पास 50 कंपनीज का डेटा एक साथ आ जाएगा। कहाँ पे करना है, ये हाईलाइट करता हूँ, देखो रिजल्ट्स पर पेज यहाँ पे दिख रहा है आपको। इफ़ यू वांट टू सी 10 companies per page, then you can click over here 10 companies. If you want to have 25 companies, then you can have 25 companies over here. If you want to check 50 companies at one go, तो you'll get 50 companies over here. तो ये भी आप कर सकेंगे, डिपेंड करते हैं। फिलहाल के लिए हम 25 कंपनीज लेते हैं। अब ये 25 कंपनीज लेने के बाद, अभी ये सारा स्कैनर बनने के बाद हमको करना क्या है, हमको इसको एक्सपोर्ट भी करना है। हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। सबसे पहले इधर आपको सेव दिस क्वेरी पे क्लिक करना है। सेव दिस क्वेरी पे क्लिक करने के बाद इसको हमको एक नेम देना है। तो हम यहाँ पे नाम देंगे स्टॉक मार्केट स्कैनर, ठीक है, और इसको सेव क्वेरी कर देंगे। डिस्क्रिप्शन डालने बोल रहा है, तो दिस इज़ अ स्कैनर टू फाइंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, ठीक है, इसको सेव कर देंगे। हो गया अभी सेव। तो ये हमारा जो स्कैन है ये सेव हो चुका है। अभी आपको इसको देखना है ये स्कैन किधर दिखेगा, तो सी दिस, हम हमारे फर्स्ट पेज पे आ चुके हैं। फर्स्ट पेज पे स्क्रीन्स पे क्लिक किया तो हाईलाइट करता हूँ, देखो स्टॉक मार्केट स्कैनर जो अभी हमने बनाया है वो यहाँ पे आ चुका है। देन आपको चेक करना है ये, हाउ टू चेक दिस, हाउ टू चेक द स्टॉक, यू हैव टू जस्ट क्लिक दिस। आफ्टर क्लिकिंग दिस कंपनी विल बी डिस्प्लेड ओवर हियर, और इसके जो कंडीशंस है ये कंडीशंस भी नीचे आएंगे। Now there is one point in this that if you want to check those companies which are listed in 2004 with results, only companies with September 2024 results, ऐसा अगर आपको चाहिए तो ये जो चेक बॉक्स है इसको आप टिक मार्क करेंगे, रन दिस क्वेरी करेंगे, तो आपके सामने सिर्फ एक ही कंपनी आ गई है जिसका अभी रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ है और हमारे क्राइटेरिया में भी वो है, वो बैठ सकती है। तो दैट कैन बी द पॉइंट विच वी कैन एनालाइज। तो ये भी एक एनालाइजेशन आप कर सकेंगे। रन दिस क्वेरी करेंगे, काफ़ी सारे आपके पास डेटा जो है वो आ जाएगा, ठीक है, बहुत सारा डेटाज आपके सामने आ जाएगा एंड अकॉर्डिंगली यू कैन हैव एनालिसिस। लेकिन हम इस बेस पे एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं करने वाले। हम स्टॉक्स कैसे ढूंढेंगे, मैं आपको एक स्कैनर चार्टिंग का स्कैनर दूंगा, बिकॉज आई पर्सनली यूज टेक्निकल एनालिसिस टू स्कैन दो स्टॉक्स ऑल्सो। सो अभी ये जो स्कैनर था ये तो हमने बना दिया, ठीक है। मैं आपको एक मेजर मॉडर्न पोर्टफोलियो का स्कैन बताता हूँ। तो ये आप अपने पास ये स्कैन जो है वो आपके पास लिख के रखिए। इसमें और थोड़े से पॉइंट्स मैंने डाले हैं, देखो, पुट दिस इन योर पार्ट, एक्स्ट्रा समथिंग हैव एडेड ओवर हियर, द अर्निंग पर शेयर। इससे क्या होता है, जो रीसेंट कंपनीज़ जिनका अर्निंग पर शेयर लास्ट क्वार्टर से इम्प्रूव हुआ है वो हमने यहाँ पर डाले हैं। तो वो भी हम अब हमारे पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो ऐड दिस पॉइंट्स इन दैट। तो मैंने हमारे 5 पॉइंट्स को भी इसमें डाले हैं एंड 5 पॉइंट्स के साथ बाकी की भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। तो अकॉर्डिंगली इफ़ यू चेक दिस पॉइंट्स आर ऑल्सो एडेड ओवर हियर। EPS लेटर क्वार्टर is greater than EPS preceding year quarter, and EPS latest quarter is greater than EPS preceding quarter, and EPS greater than EPS preceding year। ऐसे मैंने EPS का भी कंडीशन डाला है यहाँ पे, अर्निंग पर शेयर। दिस इज एक्स्ट्रा पॉइंट। देखो ये सिर्फ आप समझ लो
इसमें आप अपने बेस पे जैसे चाहे वैसे कुछ भी डेटा इसमें डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो सारी चीज़ें आप इसमें कर पाएंगे। सो दैट ऑल्सो यू कैन लर्न बेसिकली, ये भी आप सारी चीज़ें इसमें कर पाएंगे। देखो अगर हम इसमें देखें तो ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा का कुछ मैंने इसमें ऐड किया है। नंबर 1, EPS latest quarter is greater than EPS preceding year. EPS latest quarter is greater than EPS. EPS is greater than EPS preceding year. Y on Y is yearly quarterly sales growth greater than 10, and profit growth is greater than 10, and sales growth is greater than 10, and yearly on yearly basis quarterly profit growth greater than 10, and return on equity is greater than 15, जो हमारा क्राइटेरिया return on equity, return on capital employed is greater than 15, then return on that plus percentage is equal to 0, and promoter holding greater than 50, and market capitalization greater than 1000। इस बेस पे भी हम ढूंढ सकते हैं। और हमने जो स्कैनर किया वो भी हम देख सकते हैं, हमने जो स्कैनर किया वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें ROC थोड़ा कम दिख रहा है, मैंने शायद, हाँ इसमें हमने थोड़ा सा ये साइन थोड़ा गलत डाल दिया है, इसके लिए ये साइन में प्रॉब्लम आ गया था। ये साइन जो है, ये साइन दिस साइन वाज इम्पॉर्टेंट, तो इसको भी अभी रेक्टिफाई कर लेते हैं। 1-2 मिनट में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये साइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी हम रन क्वेरी करेंगे एंड सेव दिस क्वेरी कर देंगे, सेव चेंजेस कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारा जो क्राइटेरिया है ROC शुड बी ग्रेटर देन 15%। तो वी कैन चेक ओवर हियर, दिस कॉलम इज़ अवेलेबल, दिस इज़ द कॉलम ROC इज़ ग्रेटर देन 15%। ये सब अपने 15% से ज़्यादा आए हैं, तो वो जो साइन था वो साइन मैंने थोड़ा अलग डाल दिया इसके लिए। वी कैन चेक दिस। तो अभी हमको करना क्या है, आफ्टर आइडेंटिफाइंग सच कंपनीज, हाउ मेनी कंपनीज केम, 32 कंपनीज आए हैं। तो हमने वो 113 कंपनीज़ के बारे में बात किया, वो बाय मिस्टेक वो साइन मैंने उल्टा डाल दिया। सो दिस 32 कंपनीज़ आने के बाद यहाँ से आपको एक्सपोर्ट का बटन दबाना है, ठीक है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट का बटन दबाएंगे ये आपको कहेगा कि आपको पेड यूज़र बनना है। तो हमको एक्सपोर्ट का बटन जब हम दबाएंगे तो हमको पेड यूज़र बनाने के बारे में ये लोग कहेंगे, जिनका एक्टिव इन्वेस्टर प्लान है कुछ 5000 रुपीज़ का। तो हमको ये नहीं करना है, हमको बिल्कुल भी इसको पेड वर्जन नहीं लेना है। जब तक फ्री की चीज़ें यूज़फुल है तब तक पेड वर्जन फिर क्यों ले हम, राइट। सो हम यहाँ पे हमारे मेजर कंपनीज़ के बारे में देखेंगे। देर आर मेनी कंपनीज ओवर हियर, इफ़ यू सी दिस आर द डिटेल्स विच आई हैव पुट ओवर हियर। अगर आपको ये सारा डेटा नहीं चाहिए, आपको कॉलम्स में जाना है, एडिट कॉलम्स, मैंने यहाँ पे कुछ डाले हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशो, मार्केट कैपिटलाइजेशन, डिविडेंड यील्ड, नेट प्रॉफिट, ईयरली प्रॉफिट, सेल्स क्वार्टर, ईयरली, ये सब मैंने एक्स्ट्रा डाला है। अगर आपको लगता है सर ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ वो चीज़ चाहिए जो हमने एनालाइज की है, तो हमें कौन सी चीज़ चाहिए, हमको चाहिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देन वी वांट रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, देन वी वांट दी प्लेज परसेंटेज, देन वी वांट डेट टू इक्विटी रेशो। तो दैट यू कैन एडजस्ट ओवर, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, जिसको चाहे उसको ऊपर ले सकते हैं। जैसे अभी मुझे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को ऊपर लाना है, तो मैं इधर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को पहला लाऊंगा, फिर इधर से ड्रैग करना है, सिर्फ ड्रैग, राइट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को हम यहाँ पे पहले लाएं, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मुझे फॉर एग्जांपल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद मुझे डेट टू इक्विटी रेशो देखना है, तो मुझे डेट टू इक्विटी रेशो वाली कंपनी भी पहले देखनी है। तो मैं क्या करूँगा, डेट टू इक्विटी रेशो पहले लाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे डेट टू इक्विटी रेशो के बाद है ना तुरंत मुझे प्रमोटर का होल्डिंग भी पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पे मुझे प्रमोटर होल्डिंग देखना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से लेना है, यहाँ पे ड्रैग करना है। अभी डेट टू इक्विटी हमारा सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर पे चला गया। जैसे आपको चाहिए वैसे आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, जैसे आपको चाहिए वैसे आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आया, डेट टू इक्विटी रेशो आया, प्रमोटर होल्डिंग आया, ठीक है। बाकी सारे आपको जैसे चाहिए वैसे लाइन में। और अभी हम सेव कॉलम्स करेंगे। देखो सेव कॉलम्स करने के बाद वी कैन चेक दिस। करंट मार्केट प्राइस को वैसे ही रख दो, करंट मार्केट प्राइस नॉर्मली हमको पहले चाहिए, तो करंट मार्केट प्राइस हमारे पास पहले आ चुका है। देन हमारे पास जो सेकंड कॉलम आया है
वो हमको आ गया। देखो रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल अवर क्राइटेरिया वॉज 15%, ये लोग 37% का क्राइटेरिया इनका 37% का है। एंड डेट टू इक्विटी रेशियो मैंने कहा था 1 के आसपास का, तो इधर 1 है 1.26। तो हाँ अभी देखो डेट टू इक्विटी रेशियो में भी हमने सबने ग्रेटर देन कर दिया। अभी देखो इसमें गड़बड़ क्या है, ये ऐसा पॉइंट कैलकुलेशन में रॉन्ग होता है आपका। अभी जैसे कि हम फिर से स्क्रीन में जाते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो हमारा लेस देन 1 था, राइट, तो हमने सब में ग्रेटर का साइन डाल दिया है, राइट। एक सेकेंड, नीचे क्वेरी में जाएंगे, देखो डेट टू इक्विटी रेशियो भी ग्रेटर डाल दिया, इसको लेस देन 1 चाहिए हमको, राइट, लेस देन 1 चाहिए, तो लेस देन 1 करेंगे, रन क्वेरी कर देंगे, रन क्वेरी कर दिया। अभी आपके सामने बहुत सारी कंपनीज आ गई, देखो डेट टू इक्विटी रेशियो सबके 0.0000000 आ गए। तो आप जिस तरीके से हैंडल करना चाहते हैं इसको आप कर सकेंगे। देयर विल बी मैनी कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज आपके पास आ जाएगी, एंड अकॉर्डिंगली ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट, तो एंड वी कैन डू एनालिसिस एज पर आर क्राइटेरिया। जैसे चाहे वैसे आप इसको एनालिसिस कर पाएंगे, स्कैनर बना पाएंगे, बट जितनी ज़्यादा कंपनीज आएगी उतना एनालिसिस में प्रॉब्लम हो सकता है। सो मैंने एक स्कैनर बनाया है जो मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा था, लेकिन बीच में हमने ये पॉइंट्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया, तो उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो हमने स्कैनर बनाए थे। जैसे कि फर्स्ट स्कैनर, जस्ट 1 सेकेंड, नेट स्लो हो गया लगता है। हाँ, मॉडर्न पोर्टफोलियो ट्रेंडिंग एंड मोमेंटम स्टॉक्स का एक स्कैनर मैंने बनाया है, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं, दैट आई वॉज डिस्कसिंग विद ऑल ऑफ यू। यस, सो स्टॉक्स तो आ जाएंगे, स्टॉक्स इज़ नॉट अ मेजर टास्क ओवर हियर, लेकिन ये क्वेरी देखो आपके पास, ये ऊपर वाले जो पॉइंट्स है ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा डाले हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मैम को भेज दूंगा, तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली स्कैन कर पाएंगे, और बाकी भी काफ़ी सारे स्कैनर मैं आपको दूंगा। दिस इज़ बेस्ड ओनली ऑन फंडामेंटल्स, बट इसमें प्राइस का कुछ रोल नहीं है, तो प्राइस वाला स्कैनर भी हम बनाना सीखेंगे, एंड प्राइस के साथ मैं आपको स्कैनर बना के भी दे दूंगा डायरेक्टली, बिकॉज जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली स्टॉक्स आ जाएंगे। क्लियर हुआ इतना? इज इट क्लियर दिस मच? सो यू कैन चेंज अकॉर्डिंगली, जैसे भी आपको चेंज करना है आप अपने बेस पे दिस स्कैनर को चेंज कर सकते हैं, दिस क्वेरी को चेंज कर सकते हैं, एनी डिफरेंट कंडीशंस इफ़ यू थिंक दैट वी कैन ऐड इन दिस। सर हमको ईपीएस का कंडीशन नहीं डालना है, हमको कोई एक्स्ट्रा और कंडीशन डालना है, हमको कैश फ्लो का कंडीशन डालना है, हमको बैलेंस शीट के कुछ पॉइंट्स के कंडीशन डालना है। सो अकॉर्डिंगली दैट डिपेंड्स ऑन यू, दैट यू आर टोटली फ्लेक्सिबल टू डू एनीथिंग, बट रिमेंबर द मोर यू विल ऐड कंडीशंस द मोर यू विल गेट फिल्टर्ड स्टॉक्स। जितना ज़्यादा आप कंडीशन ऐड करेंगे उतना आपका स्टॉक्स का यूनिवर्स जो है वो फिल्टर हो जाएगा, जितना कम आप डालेंगे उतना आपके पास कम स्टॉक्स आ जाएगा। देखो अभी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया ओनली कंपनीज विद सितंबर 2024 रिजल्ट्स और रन क्वेरी किया, तो सिर्फ मेरे पास 4 कंपनीज ही आए हैं, टिप्स म्यूजिक, वेल्थ फर्स्ट एंड न्यूजेन सॉफ्टवेयर, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड, ऐसी कंपनीज मेरे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन आया है। तो डेट टू इक्विटी रेशो आप चेक करेंगे तो डेट टू इक्विटी रेशो सबका 0-0 है। हमारा क्राइटेरिया था प्रमोटर होल्डिंग का, प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर चाहिए तो 50% से ऊपर है। ROC जो है वो 15% से ऊपर चाहिए तो 15% से ऊपर है ऐसे, और ROE भी इधर है, लास्ट में गया है ROE जो है वो 70%, 33, वो भी हमारा ये 3 ईयर्स का एवरेज भी मैंने उसमें डाला है। अब जैसे ये कॉलम्स अगर आपको नहीं चाहिए तो you can remove this columns also. This is one another scanner which I have prepared. So if you want to add this conditions in the scanner which you are going to prepare, absolutely you can add this also. और एक स्कैनर भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो और एक स्कैनर भी मैंने बनाया है, तो मैं आपको बताता हूँ। मोमेंटम इन्वेस्टिंग मंथली करके, ये हम सिर्फ एक बार मंथली बेस पे स्कैन करते हैं, तो ये मंथली बेस पे स्कैन करने वाला स्कैनर है। तो थोड़े कंडीशन टिपिकल है, तो अगर आपको कंडीशंस टिपिकल लग रहे हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसी कंडीशंस के बेसिस पे ये स्कैनर बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए डिस्प्ले करता हूँ, एक सेकेंड। देखो, मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर दैन 25,000 एंड रिटर्न ओवर 1 ईयर इज़ ग्रेटर दैन 15% एंड
डाउन फ्रॉम 52 वीक्स हाई, 52 वीक्स हाई से डाउन सिर्फ 20% ही नीचे हुआ है। एंड 100 मल्टीप्लाइड बाय हाई प्राइस माइनस करंट प्राइस, ये फॉर्मूला डाला है मैंने। एंड अकॉर्डिंगली ये सारा स्कैनर मैंने बनाया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इससे आपको मंथली बेस पे अच्छे खासे स्टॉक्स मिल पाएंगे। तो ये भी आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखें and then you can start preparing also, otherwise I will share with you also। ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा बिकॉज ये आपको अगर लिखने में कंडीशंस थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो ये मैं जो आपके साथ स्कैनर शेयर करूंगा, सिर्फ आप वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको screener.in से वो स्टॉक्स ही मिल जाएंगे। तो दैट ऑल्सो आई विल बी गिविंग यू, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन ये स्क्रीनर कैसे बनाने का वो अभी हम मेजर हमारा टास्क है। और अगर आपको स्क्रीनर नहीं बनाना है, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, सर हमको ना स्क्रीनर नहीं बनाना है, हमको ना कुछ रेडीमेड बताइए। अभी जैसे हमने कुछ डिस्कस किया था कि देर आर द पर्सन्स हु आर इन्वेस्टिंग फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज इन द इंडियन मार्केट्स एंड दे आर कॉल्ड एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो अगर आपको कोई ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो FII बाय कर रहे हैं, तो ये किसी कार्तिक राजेंद्रन ने बनाया है। तो FII बाय करने वाले स्टॉक के लिए उन्होंने क्या कंडीशन डाला है, देखो, चेंज इन FII होल्डिंग इज ग्रेटर देन 1% एंड FII होल्डिंग माइनस चेंज इन FII होल्डिंग इज लेस देन 5%। तो ये ऐसा कंडीशन उन्होंने डाला है और कंडीशन डालने के बाद आपके लिए ये फ्री में कर दिया है। तो आपके पास ऐसे भी स्क्रीनर्स यहाँ पे अवेलेबल है जो फ्री में आप यूज़ कर सकेंगे, वो भी एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो चीज़ें तो बहुत सारी है लेकिन यूज़ क्या करना है दैट डिपेंड्स। नाउ पॉपुलर थीम्स में ये पॉपुलर थीम्स है। अगर आपको एक ही कंडीशन, अभी कुछ लोग क्या कहते हैं कि मुझे ना ऐसी स्टॉक्स चाहिए जो डेट में कंपनी बहुत कम हो, मतलब डेट फ्री कंपनी हो, या डेट फ्री से ज़्यादा वो लोग अपने डेट को रिड्यूस कर रहे हो, मतलब उन्होंने कर्जा तो लिया था बिजनेस बढ़ाने के लिए लेकिन अभी वो कर्जा जो है वो कम कर रहे हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड डेट रिडक्शन। तो यहाँ पे एक थीम है डेट रिडक्शन। तो डेट रिडक्शन में अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो डेट रिडक्शन का एक कंडीशन डाला है, ऊपर से एक बैलेंस शीट असेट का भी कंडीशन डाला है। ग्रॉस ब्लॉक इज द टोटल ऑफ फिक्स असेट्स इज ग्रेटर देन 1.2 मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस ब्लॉक प्रीसीडिंग ईयर करके ऐसा इन्होंने कंडीशन डाला है। तो आपको इतने स्कैनर बनाने में अगर दिक्कत होती है, इसलिए हमने क्या किया, 5 कंडीशंस डाले, वो 5 कंडीशंस के बेसिस पे रन क्वेरी कर दिया। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, हाउ टू प्रिपेयर दिस स्कैनर, आई एम नॉट कंफर्टेबल, डोंट वरी, आई विल शेयर माई स्कैनर विद यू। मैंने जो 2-3 स्कैनर बनाए, मैं 2 स्कैनर जो यूज़ कर रहा हूँ, देखो ज़्यादा नहीं बनाना है वरना क्या हो जाएगा पता है, आप स्कैनर ही स्कैनर बनाते रहेंगे और फिर कभी ये यूज़ करेंगे कभी यूज़ करके खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। ज़्यादा स्कैनर नहीं बनाना है। मैंने सिर्फ 2 स्कैनर बनाया और अभी मैंने आपके लिए एक यहाँ पे प्रैक्टिकली स्कैनर बना के दिखाया। उसमें भी अगर आपको लगता है कि सर मुझे ना ये कंडीशन आप में डालना चाहिए था, मुझे प्राइस टू अर्निंग सर चाहिए मेरे स्कैनर में, डालिए, नो प्रॉब्लम, इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। ऐसा नहीं कि मैंने आपको 5 कंडीशंस बताए तो आप भी 5 कंडीशंस डालेंगे। इट डिपेंड्स ऑन यू, it totally depending on you whether you want to add market capitalization condition or not, whether you are interested in penny shares तो आप penny shares डालिए। market capitalization should be less than 1000 करोड़ या less than 500 करोड़, तो सारा penny stock वाला कंपनी आएगा, जितना भी penny stocks है सब आएगा। अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन को 500 करोड़ से नीचे वाला कर देंगे तो सारा का सारा penny stocks वाले कंपनी आ जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट देन। यहाँ पे पॉपुलर थीम्स भी है, यहाँ पे अगर नीचे जाएंगे हम तो पॉपुलर फार्मूलाज है, तो काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हैं, मैजिकल फार्मूला है, पायोट्रिस्की स्कैन है, कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो, इनका एक बुक है सौरभ मुखर्जी का, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग। ये कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो अगर आप क्लिक करेंगे तो ये बहुत सीधे तरीके से स्कैनर इन्होंने आपको दे दिया है। देखो सेल्स जो ग्रोथ है वो ग्रेटर देन 10% होना चाहिए, सेल्स का ग्रोथ लास्ट 10 साल का भी ग्रेटर देन 10% होना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल ग्रेटर देन 15% होना चाहिए, जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया। फिर उन्होंने एक दूसरा कंडीशन डाला है, रिटर्न एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर लास्ट 10 ईयर शुड ऑल्सो भी ग्रेटर देन 15% एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड भी ग्रेटर देन 1000 करोड़। तो 500 करोड़ वाली कंपनीज इसमें आएंगी ही नहीं। एकदम सिंपल कंडीशन है, सौरभ मुखर्जी का एक बुक है, आप चाहे तो वो पढ़ सकते हैं एंड दैट इज़ कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग, वो कंडीशन है ये सारे। उस बुक में भी यही सारे कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया होगा एंड इफ़ यू रन दिस क्वेरी यू विल गेट दिस स्टॉक्स ओवर ईयर। 106 स्टॉक्स आ रहे हैं कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के पोर्टफोलियो में, जिसमें CDSL भी आ रहा है। देखो CDSL है, HDFC AMC है, तानला प्लेटफॉर्म्स है, त्रिवेणी टर्बाइन है, निपॉन इंडिया है, बहुत सारा है। इसमें से बहुत सारी कंपनीज आप जानते भी होंगे।
So there are many companies over here, but remember that we cannot buy every companies which are present over here. The reason is very simple. We are having limited funds. हमारे पास लिमिटेड फंड्स है, हमारे पास लिमिटेड पैसा है. अगर लिमिटेड पैसा है तो इनमें से कौन से ऐसे शेयर्स होंगे या ऐसे स्टॉक्स होंगे जो हमारे लिए कंफर्टेबल है. तो अभी हम फिलहाल ये सीख रहे हैं कि आउट ऑफ दैट 2000-3000 कंपनीज हाउ कैन वी रेस्ट्रिक्ट द यूनिवर्स टू 100-200 और 50-60 कंपनीज. फ्रॉम आउट ऑफ दैट 100-200 कंपनीज we are going to do what? We are going to do analysis, and after doing analysis we'll be shortlisting from that companies also, and then identifying such factors whether at what price which we can do entry over here. Is it clear this much to everyone? Do you have any kind of doubts up till now? Anyone has any kind of queries? Or you want me to explain it one more time? Whichever points you have doubt, just tell me. I will explain it one more time. किसी को कोई पॉइंट में समझ नहीं आया क्या कैसे करना है, कैसे रन क्वेरी करनी है, कैसे कंडीशंस डालने हैं? एवरीवन अंडरस्टूड अप टिल नाउ? Is it clear to everyone? No doubts? No doubts? Okay, no problem. चलो, thank you very much. आगे बढ़ते हैं. So this can be the different types of scanners which are available over here. Now there are some popular themes, popular formulas which we have discussed, and on the basis of price also we can use. तो देर इज़ मेजर स्कैन ऑफ प्राइस. टेक्निकल एनालिसिस विल डिस्कस, बट एक मेजर है यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर, जहाँ पे मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं. 50 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गोल्डन क्रॉस ओवर. तो यहाँ पे आप चेक करो, पूरा टेक्निकल एनालिसिस का कंडीशन डाला है. डेली मूविंग एवरेज 50 इज़ ग्रेटर दैन डेली मूविंग एवरेज 200 एंड डेली मूविंग एवरेज 50 ऑफ प्रीवियस डे इज़ लेस दैन डेली मूविंग एवरेज 200 डे प्रीवियस डे. ठीक है, डेली मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज फॉर द प्रीवियस डे, ऐसा कंडीशन है. दो कंडीशन के बेसिस पे आपके पास टोटल 9 स्टॉक्स यहाँ पे आए हैं. देखो 9 स्टॉक्स आए, सिर्फ 9 स्टॉक्स. तो ऐसे हम बहुत सारे स्कैनर बना पाएंगे, बट बेसिकली जितना ज़्यादा आप स्कैनर बनाएंगे उतना आप स्कैन करते ही रहेंगे, आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे. आप कुछ ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स को सिर्फ एनालिसिस ही कर पाएंगे, एंट्री नहीं कर पाएंगे. इसलिए आप देखो मेरे प्रोफाइल में भी मैंने कितने स्कैनर बनाए हैं. मैंने सिर्फ 2 स्कैनर बनाए, एक मैंने अभी आपके साथ बनाया यहाँ पे, बट कंडीशन तो बेसिकली वही है. एंड दिस मॉडर्न पोर्टफोलियो एंड मोमेंटम इन्वेस्टिंग, ये दोनों के दोनों मैं सिर्फ यूज़ करता हूँ, बाकी इसमें से मैं कुछ यूज़ नहीं करता हूँ. और एक चार्टिंग का ओवरऑल स्कैनर टेक्निक्स है, दैट ऑल्सो विल बी लर्निंग, दैट ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट. वो भी हम सारी चीज़ें सीखेंगे. तो आपको समझ में आया स्कैनर कैसे बनाना है. तो जैसे ही सेशन ख़त्म हो जाएगा आप ओवरऑल ट्राई करो कि स्कैनर कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके से हमको स्कैनर बनाना है. तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सीधा चलते हैं बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के इसमें. यस, विवेक इज आस्किंग सम क्वेश्चन. विवेक, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स? ओपन क्वेश्चन करके कुछ है विवेक को. यस विवेक, एनी डाउट और जस्ट बाय मिस्टेक हुआ है? चलो, आई गेस इट इज़ बाय मिस्टेक, नो प्रॉब्लम. So yes, so this is the part of the fundamental analysis. Now again I repeat, fundamental analysis will help you to do analysis. Fundamental analysis will help you to identify out of that 3000 4000 companies which companies are fundamentally strong, but fundamental analysis will not help you to do entry for a specific stock as per the price is concerned. Because whenever we are investing on the basis of price to earning ratio, which we have discussed yesterday only, and we are try to identify such companies where the prices are overvalued or undervalued, and on the basis of that if we are finding out such stocks where the price is actually undervalued, then that concept is called as value investing.
but since in the market there are many players and many HNI big clients, the FII, the retail clients, everyone is trying to identify stocks. So there are there is a different method also used, and that different method is called as on the basis of charts, on the basis of some line charts, some candlestick charts. There are n number of charts, point and figure होता है, रेनको चार्ट्स होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली फेमस है उसके बारे में अभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और वो है हमारा टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक चार्ट्स. तो कैसे चार्ट को पढ़ा जाता है, आप में से किन को चार्ट्स पढ़ने आता है? एनी ऑफ यू नो हाउ टू रीड कैंडलस्टिक्स? जस्ट वांटेड योर कमेंट्स. हम स्टार्टिंग से पढ़ने वाले, बेसिक से, एकदम बेसिक से जाएंगे. कैंडलस्टिक्स किसी को पता है? आप में से कितने स्टूडेंट्स को कैंडलस्टिक पैटर्न्स पता है? या फिर आप में से कितने स्टूडेंट्स को, कृष्णा इज सिंग यस सर आई नो, वेरी गुड कृष्णा, वेरी गुड. चलो कृष्णा को पता है, और किसी को पता है? एनी वन ऑफ यू नो? यस सर, रफ आइडिया. वैष्णवी सिंह रफ आइडिया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, रफ आइडिया है, हम पूरा फेयर कर लेंगे, ठीक है, ओके, नो इशू इन दैट. सो टू ऑफ द स्टूडेंट्स बेसिक इन्फॉर्मेशन, योगेश इज सेइंग बेसिक इन्फॉर्मेशन है. चलो ठीक है, बहुत बढ़िया. जिनको बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, अभी हम पूरा टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक. एंड टुडेज सेशन आई विल बी डिस्कसिंग ऑल बेसिक्स. टुमारो we are going to have an offline session. I am going to come there. You all remain present, because tomorrow we will be discussing about the technical aspects, technical candlestick patterns, and all those points which are been related with the candlesticks. And जो मेजर कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जो मैं यूज़ करता हूँ, जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल को पता होने चाहिए, जिससे हम मार्केट में एनालिसिस कर सकेंगे. फिर कुछ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उसको यूज़ कर सकेंगे. दैट ऑल्सो वी विल बी लर्निंग. तो डोंट रिमेन एब्सेंट फॉर टुमारो. टुमारो सेशन विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग. लेकिन कल के सेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं, उसके पहले आज कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ के रखते हैं. सो इफ़ वी नो द बेसिक्स ऑफ टुडे विच वी आर गोइंग टू लर्न नाउ, देन आपको कल का सेशन और प्रैक्टिकली अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है. तो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द कैंडलस्टिक्स. एक छोटे से चीज़ें हैं, 4-5 स्लाइड्स है पीपीटी का, एक एक पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं. एंड ओवरऑल आज एक बेसिक चीज़ समझते हैं, बिकॉज इफ़ आई सी दैट मोस्ट ऑफ यू don't know anything about candlestick, most of you don't know anything about the technical analysis, and we will be learning from the basics only. So remember students, this whatever I'm going to teach you now is very important if you want to analyze any stock, because stock market is the place where human emotions comes, and that is why what other peoples are thinking, what other peoples are doing, that we will be able to know as per the candlestick charts, as per the patterns on the candlestick charts. तो it's basically a very advanced study. but जितनी चीज़ें एक नॉर्मल इंडिविजुअल को, एक पर्सन को पता होनी चाहिए, उतनी सारी चीज़ें हम सीखेंगे. सिर्फ आप प्रॉपरली स्टार्टिंग से ध्यान देना. एंड अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो ट्राई टू आस्क मी, डोंट हेजिटेट दैट मुझे ये पता नहीं चला, कैसे इसको स्टार्ट करें. तो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग. मैं कुछ पीपीटी आपके साथ डिस्कस करता हूँ, एंड उसके साथ कुछ बेसिक चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे आज. एंड देन फिर कल प्रैक्टिकली जब मिलेंगे तब बाकी का पढ़ लेंगे. चलो, PPT visible, everyone? Just one confirmation from your side. Okay, thank you. चलो, थैंक यू वेरी मच. चलो, PPT विजिबल है. अरे बाप रे, बहुत सारे कमेंट्स आ गए. चलो ठीक है. नाउ बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस वी आर गोइंग टू लर्न. देखो, फंडामेंटल एनालिसिस में ऐसा नहीं कि फंडामेंटल एनालिसिस एक मतलब अच्छा कंसेप्ट नहीं है, या फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं चाहिए. Usually what happens, since we all are commerce background students, we know about the P&L, we know about the balance sheet. Then too, there are certain people who know about fundamental analysis, they also rely on technical analysis, because there is a thin line between fundamental analysis and technical analysis. Fundamental analysis will tell you which stocks to buy,
and technical analysis will tell you when to buy. Did you got my point? फंडामेंटल एनालिसिस हमको ये बताएगा कि कौन से स्टॉक्स को बाय करना चाहिए, एंड टेक्निकल एनालिसिस हमको ये बताएगा कि उसे कब बाय करना चाहिए. कौन से भी प्राइस में बाय करेंगे तो आप फिर लॉस में जाएंगे. सो हमें ये मेजर डिफरेंस हमेशा याद रखना है. आई एम नॉट सेइंग कि टेक्निकल एनालिसिस इज सुपीरियर देन फंडामेंटल एनालिसिस. दोनों अपने जगह पे सही है, दोनों अपने जगह पे अच्छे हैं, दोनों अपने जगह पे अच्छे काम कर रहे हैं. देर आर सर्टन पीपल हु आर डूइंग ओनली फंडामेंटल एनालिसिस एंड देन ट्राइंग टू इन्वेस्ट. There are certain people who are doing technical analysis, and there are certain people who have a concept of techno funda investing. That means they use fundamental also, they use technical also, and they mix this techno and funda. That is technical as well as fundamentals. Now basics of technical analysis में देखो, टेक्निकल एनालिसिस बहुत पुराना टाइम से चल रहा है. पहले राइस ट्रेडिंग जो होता था उसके लिए ये टेक्निकल एनालिसिस यूज़ होता था टू प्रेडिक्ट द प्राइसेस. लेकिन हम एक मेजर ज़्यादा उसको वहाँ तक नहीं जाते हैं. मेजर चीज़ जो हमारे काम की है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. द नंबर फर्स्ट पॉइंट इज़ ट्रेंड्स इन द मार्केट. देखो, मार्केट में ना ट्रेंड्स होते हैं, मार्केट में साइकिल होता है, एक साइकिल. नाउ व्हाट इज़ दिस साइकिल या व्हाट इज़ दिस ट्रेंड? Just try to understand a very important point which we are going to discuss. If you understand this, then the tomorrow's session will be clear for you. तो अभी ज़रा ध्यान दो, एक जितना भी 40-45 मिनट्स हम डिस्कस करने वाले, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक्स, हम आगे जाके कुछ मतलब ही नहीं है. फिर मैं चार्ट पे बताऊंगा तो आपको कन्फ्यूजन होएगा. नंबर फर्स्ट है, मार्केट में ना ट्रेंड्स होते हैं. ट्रेंड का मतलब क्या है? मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है. ये जो ऊपर जाना और नीचे आना है उसको हम ट्रेंड कहते हैं. अब ये जो ट्रेंड है मैं आपको बताऊंगा. तो ट्रेंड जो है, ये डाउ थियोरी जो है, डाउ थियोरी के बेसिस पे एक डाउ ने थियोरी दिया था, उसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि देयर आर ट्रेंड्स इन द मार्केट. और ये कितने ट्रेंड्स है वो हम डिस्कस करेंगे. वो ट्रेंड डिस्कस करने से पहले दो टाइप के कैंडल्स के बारे में डिस्कस करते हैं. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम एग्जांपल लेंगे, हम सारी चीज़ें समझेंगे, हम प्रॉपरली इसका पॉइंट एनालाइज करेंगे, बिकॉज अभी आप कुछ एक अलग टाइप की लैंग्वेज पढ़ रहे हो, और वो जो लैंग्वेज है उसी को हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स या कैंडलस्टिक चार्ट्स कहने वाले हैं. और ये जो चार्ट्स देख के आपको कैसे पता चलेगा कि प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा. नंबर फर्स्ट, ट्राई टू एनालाइज. नाउ वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ कैंडल्स ओवर हियर. ऐसा कुछ आपके सामने दो टाइप के कैंडल्स डिस्प्लेड है. नंबर फर्स्ट इज ग्रीन कलर कैंडल एंड नंबर सेकेंड इज रेड कलर कैंडल. सो ग्रीन कलर कैंडल इज कॉल्ड एज बुलिश कैंडल एंड रेड कलर कैंडल इज कॉल्ड एज बेरिश कैंडल. आई विल जस्टिफाई दिस. व्हाट इज दिस बुलिश एंड व्हाट इज दिस बेरिश? बुलिश कैंडल का कलर कौन सा है? तो बुलिश कैंडल का कलर होता है ग्रीन. और बेरिश कैंडल का कलर कौन सा है? बेरिश कैंडल का कलर होता है रेड. राइट? सो बुलिश इज ग्रीन एंड बेरिश इज रेड. नाउ बुलिश कैंडल मीन्स व्हाट? बुलिश कैंडल मीन्स द बायर्स आर मोर एग्रेसिव देन सेलर्स. द बायर्स आर मोर aggressive than sellers. That means people are ready to buy at any price, even if the price is going up, even if the price is moving forward, people are ready to buy at that price. Say for example the stock price is 100, after reaching the stock price from 100 to 105, people are ready to buy at 105. Even if the price reaches 110, then some people are ready to buy at 110 also. As soon as the price goes up, people are ready to buy, and in that case the buyers are more aggressive than the sellers, and that is the reason you will get a bullish candle over here. फिर कितने टाइप्स के कैंडल होते हैं वो सारे हम सीखेंगे. धीरे धीरे जाना है. बेसिक्स से समझ में आना चाहिए. यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको बेसिक्स नहीं क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं. जिसको क्लियर है उसके लिए रिवीजन हो जाएगा, जिसको क्लियर नहीं है उसका बेसिक्स भी क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक्स, आप इस लैंग्वेज को पढ़ नहीं पाएंगे. बिकॉज जैसे हमने ABCD पढ़ा उसके बाद हम सेंटेंस फ्रेम कर पाए, वैसे आप अगर कैंडल स्टिक्स का बेसिक्स पढ़ लेंगे तो आपको फिर आगे का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. सो फर्स्ट कैंडल में
आपको दिख रहा है ग्रीन कलर, सेकेंड कैंडल में आपको दिख रहा है रेड कलर। फर्स्ट कैंडल है बुलिश कैंडल मतलब बायर्स एग्रेसिव, सेकेंड कैंडल है बेरिश कैंडल मतलब सेलर्स एग्रेसिव। अभी ध्यान से समझना, आगे का पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। से फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्टॉक है जो 100 में ओपन हुआ, ठीक है, ओपन मतलब सुबह 9:15 को ओपन हुआ, तब उसका प्राइस था 100 रुपीज़। ओपन होने के बाद दो लोग आपस में झगड़ते हैं। दो लोग कौन है? एक होता है बायर, एक होता है सेलर। बायर जिस दिन जीतता है उस दिन मार्केट ऊपर जाता है, सेलर जिस दिन जीतता है उस दिन मार्केट नीचे जाता है। एकदम सिंपल रूल है। इन आवर इकोनॉमिक्स इट इज डिमांड एंड सप्लाई, राइट? डिमांड और सप्लाई ये कंसेप्ट है। जिस दिन बायर जीतेगा उस दिन प्राइस ऊपर जाएगा, जिस दिन सेलर जीतेगा उस दिन प्राइस नीचे जाएगा। तो 100 रुपीज़ में एक स्टॉक ओपन हुआ, वो नीचे गया 90 तक। कहाँ तक गया? 90। मैं यहाँ पे डेटा भी लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक स्टॉक 100 रुपीज़ में ओपन हुआ और सेलर्स ने उसको नीचे धक्का दिया, वो 90 तक गया, लेकिन बायर्स इतने एग्रेसिव थे कि बायर्स ने 90 से जो बाइंग करना स्टार्ट किया, स्टॉक 100 से और ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, और स्टॉक सीधा पहुंच गया 115 पे, 115 पे। लेकिन 115 पे जाने के बाद सेलर्स ने थोड़ा सा नीचे लाया, और सेलर्स ने नीचे लाने के बाद दोपहर को 3:30 बजे 3:30 को मार्केट जब क्लोज हुआ, तब आपको स्टॉक का प्राइस दिखा 110, और स्टॉक 110 में जाके क्लोज हो गया। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान दोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। स्टॉक 100 पे ओपन हुआ था, स्टॉक नीचे गया 90 तक, फिर 90 में जाने के बाद बायर्स आ गए, एग्रेसिव हो गए, और 90 से जो उन्होंने बाइंग स्टार्ट किया, प्राइस 100 के ऊपर चला गया, गया 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 सीधा ऊपर 115 तक। 115 से सेलर्स थोड़े से मार्केट में आए और सेलर्स से थोड़ा उसको नीचे पुश किया, और नीचे पुश करने के बाद दोपहर को 3:30 को प्राइस बन गया 110 और मार्केट बंद हो गया, स्टॉक क्लोज हो गया। अब आपके सामने 4 प्राइजेस यहाँ पे है, एक है 100, एक है 90, एक है 115, एक है 110। तो ये जो कैंडल बनेगा, एक कैंडल में हमेशा 4 प्राइजेस होंगे, और 4 प्राइजेस कौन से होंगे? ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ओपन was at 100, low was 90, high was 115 and close was 110. Is it clear this much? This example is clear to everyone? चलो, वेरी नाइस, यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब जो ये कैंडल बना है, ये ग्रीन कैंडल बना। अब ये ग्रीन कैंडल क्यों बना, आपको रीज़न बताता हूँ। देखो, ग्रीन कैंडल क्यों बना और ग्रीन कैंडल कब बनेगा। ग्रीन कैंडल क्यों बना? बिकॉज बायर्स वर मोर एग्रेसिव। तो ग्रीन कैंडल बनता कब है? जब कभी भी आपका ओपन का प्राइस से ज़्यादा आपका क्लोज का प्राइस रहेगा। वेन एवर आवर ओपन प्राइस इज लेस देन आवर क्लोज प्राइस। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ओपन प्राइस वॉज 100 एंड क्लोज प्राइस वॉज मोर देन 100, एंड दैट इज द रीजन ग्रीन कैंडल ही बनेगा। दैट इज कॉल्ड एज बुलिश कैंडल। क्लियर हुआ इतना? इज इट क्लियर दिस मच? ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब ध्यान से और थोड़ा कंसेप्ट पढ़ते। अभी क्या हुआ है, ये जो ऊपर आपको एक छोटा सा ऐसा लाइन दिख रहा है, मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ। ये ओपन, ये हमारा ऊपर एक लाइन है, एंड ये जो नीचे एक लाइन है। ऊपर जो लाइन है और नीचे जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज अपर विक एंड लोअर विक। दिस इज कॉल्ड एज अपर विक, दिस इज कॉल्ड एज लोअर विक, और दिस इज कॉल्ड एज अपर शैडो, or this is called as lower shadow. Either you call it as upper wick or lower wick, or either you call it as upper shadow or lower shadow. Anything you can call it, but that is technically right. Is it clear now?
अपर विक लोअर विक इज क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं बीच बीच में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना, इसलिए आई एम आस्किंग इन बिटवीन। एंड ये जो भी आपको ये बॉडी बना है, ये इतना जो बॉक्स बना है, ये बॉडी जो है, दिस इज कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ द कैंडल, दिस इज कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ द कैंडल। तो हमने क्या सीखा, रैप अप कर लेते क्विकली। एक स्टॉक 100 रुपीज़ में ओपन हुआ, वो 100 रुपीज़ से थोड़ा नीचे गया 90 तक, फिर 90 में इतने सारे बायर्स आ गए मार्केट में कि सीधा उसको बाय करते 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 ऊपर लेके गए 115 तक। अब 115 में कुछ सेलर्स आ गए, उन्होंने पुश कर दिया उसको और वो स्टॉक 110 में क्लोज हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपीज़ का स्टॉक 110 में क्लोज हुआ, दैट मीन्स वो बढ़ के क्लोज हुआ है, मतलब बायर्स एग्रेसिव है, तो ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज बुलिश कैंडल। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट कॉल्ड एज बुलिश कैंडल। अभी हम पढ़ते हैं हमारा सेकेंड पार्ट विच इज कॉल्ड एज बेरिश कैंडल। अब ये बेरिश कैंडल क्या है, ध्यान से समझना, ये थोड़ा उल्टा है उससे। नंबर 1, बेरिश कंडीशन या बेरिश कैंडल इज दैट टाइप ऑफ कैंडल वेयर सेलर्स आर मोर एग्रेसिव। दैट मीन्स मार्केट में जो बंदे सेल कर रहे हैं, ज़्यादा करके उनको प्रॉफिट तभी होता है जब मार्केट गिरता है। ऐसे लोग हैं जो फ्यूचर्स ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जैसे ऑप्शंस है तो कॉल पुट का कंडीशन होता है, जो हम कभी डिस्कस कर लेंगे टाइम मिला तो उसके बारे में भी। लेकिन वो जो लोग होते हैं उनका मेजर पर्पस होता है मार्केट गिराओ, मार्केट गिरेगा तो प्रॉफिट होगा उनको और मार्केट बढ़ेगा तो लॉस होगा उनको, बिकॉज इट्स अ जीरो सम गेम, एक का प्रॉफिट तो दूसरे का लॉस। तो अगर हम बेरिश कंडीशन की बात करें, सो व्हाट इज दिस बेरिश कंडीशन, व्हेन एनी, हम वही अमाउंट लेते हैं, एक स्टॉक 100 में ओपन हुआ, ठीक है, एक स्टॉक 100 में ओपन हुआ, 100 में ओपन होने के बाद वो नीचे गया, 100 में ओपन होने के बाद, सॉरी नीचे नहीं, 100 में ओपन होने के बाद वो ऊपर गया 120 तक, 120 तक, ठीक है। लेकिन सेलर्स बहुत एग्रेसिव थे, बायर्स ने ट्राई तो किया ओपन होने के बाद ऊपर ले जाना, लेकिन सेलर्स बहुत एग्रेसिव थे, तो सेलर्स ने उसको 120 से जो बेचना चालू कर दिया, स्टॉक नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, सीधा स्टॉक 120 से 80 आ गया। लेकिन वहाँ पे कुछ बायर्स आए और बायर ने क्या किया, 80 के स्टॉक को ऊपर लेके गए, ऊपर लेके गए, ऊपर लेके गए और जाके 90 तक प्राइस लेके गए, एंड 90 में स्टॉक जो है वो क्लोज हो गया। अब सीन क्या है यहाँ, व्हाट इज द मेजर पॉइंट इन दिस, दैट इफ अ स्टॉक इज ओपनिंग एट 100, it is going up at 120 and there are more sellers in the market, the sellers are more aggressive, they try to put the price, they try to push the price below 100 and the stock went directly to 80, but there were some buyers sitting over here, this some buyers started to buy and stock came upside and it closed at 90. but what is the major condition over here, stock open हुआ था 100 में, लेकिन वो 100 से कम में क्लोज हो गया। जब वो ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस कम रहेगी तब आपको रेड कलर का कैंडल मिलेगा, एंड दिस रेड कलर का कैंडल इज कॉल्ड एज बेरिश कैंडल। इज इट क्लियर, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, बुलिश में ओपन नीचे था, बेरिश में ओपन ऊपर है, समझ में आया, इज इट क्लियर? चलो, वेरी नाइस, यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अनलेस एंड अंटिल यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, मैं सीधा आपको कैंडल स्टिक बताऊंगा, देखो ये ऐसा कैंडल होता है, ये ऐसा डोजी होता है, दिस इज मारूबुजू, दिस इज सम काइंड ऑफ शूटिंग स्टार, दिस इज मॉर्निंग स्टार, दिस इज इवनिंग स्टार, दिस इज इंगल्फिंग, दिस इज दैट। आप बोलेंगे कैसे कैसे नाम लिए, हमको तो कुछ नहीं समझा। दैट ऑल्सो विल बी लर्निंग, because if you want to learn any new language or if you want to learn anything new, you should be very much clear on the basics. That's the reason I am spending more time to understand the basics. ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट ट्राई टू एनालाइज इट, ठीक है। तो ये हमने अभी दो टाइप के पॉइंट्स पढ़े,
तो हमारे पास दो टाइप के कैंडल्स होते हैं चार्ट्स के ऊपर, एक होता है बुलिश कैंडल जिसका कलर ग्रीन होता है, एक होता है बेरिश कैंडल जिसका कलर रेड होता है। फिर उसमें कितने टाइप्स होते हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, हम डिटेल में पढ़ने वाले, कल के सेशन में हम डिटेल पढ़ेंगे कौन से ऐसे टाइप्स ऑफ कैंडल है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अभी हम ट्रेंड के बारे में पढ़ते हैं। जैसे वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डिस्कसिंग दैट देर आर different trends in the market, which is also called as cycle of the market. So I will take an example, just give me 2 minutes. Now the first part is we are having 3 trends in the market. हमारे पास 3 ट्रेंड होते हैं। ट्रेंड नंबर 1 अप ट्रेंड, ट्रेंड नंबर 2 साइडवेज एंड ट्रेंड नंबर 3 डाउनवर्ड ट्रेंड। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है साइडवेज और एक होता है डाउन ट्रेंड। तो टेक्निकल एनालिसिस बिलीव्स दैट मार्केट हैज ओनली 3 ट्रेंड्स। नंबर फर्स्ट इज अप ट्रेंड, व्हेन द मार्केट इज गोइंग अप अप अप, that is called as uptrend, which is usually in the bull market. Then there is something called as sideways trend. Sideways trend तभी होता है जब बायर और सेलर दोनों एग्रेसिव होते हैं। देखो ट्रेंड में भी बायर सेलर का ही गेम है। अगर बायर एग्रेसिव है तो मार्केट ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, दैट इज कॉल्ड अप ट्रेंड। साइडवेज कब होता है? साइडवेज तभी होता है जब बायर भी एग्रेसिव है, सेलर भी एग्रेसिव है, दोनों का पावर इक्वल है, तो कोई जीतेगा नहीं, तो मार्केट वही के वही घूमता रहेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज साइडवेज। मैं प्रैक्टिकली चार्ट्स पे दिखाऊंगा आपको, ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा, फिलहाल सिर्फ थियोरी पढ़ लो आप। थियोरी समझेगा तो प्रैक्टिकली समझ में आएगा। थर्ड होता है हमारा डाउन ट्रेंड, एंड द डाउन ट्रेंड इज व्हेन सेलर्स आर एग्रेसिव। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेलर्स, अप ट्रेंड में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बायर्स, एंड साइडवेज में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बायर्स एज वेल एज सेलर्स, तो बोथ आर एग्रेसिव ओवर हियर। तो नंबर फर्स्ट ट्रेंड इज अप ट्रेंड। नाउ व्हाट इज दिस अप ट्रेंड? अप ट्रेंड में होता क्या है? अ स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 100, गोज अप टू 130। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको पता चले। ये स्टॉक 100 में ओपन हुआ, वो गया ऊपर 130 तक। ठीक है, 130 तक गया, फिर 130 से वो नीचे आया, कहाँ तक आया? 110 तक आया। फिर 110 से वो फिर से ऊपर गया 140 तक, 140 तक गया, राइट। फिर वो 140 से नीचे आया, समझो फॉर एग्जांपल 135 तक आया, राइट। फिर 135 से वो फिर से ऊपर गया, समझो डायरेक्ट 180 तक चला गया। फिर 180 तक गया, फिर थोड़ा नीचे आया 160 तक, देन अगेन इट वेन अप। तो बेसिकली क्या है? स्टॉक इज गोइंग अप, इट इज कमिंग डाउन, देन इट इज अगेन गोइंग अप, देन इट इज अगेन कमिंग डाउन, then it is again going up, and the process carries on, right? So whenever we have higher high, higher low, higher high, higher low, what is this higher high, higher low? बहुत सिंपल है। 100 में ओपन हुआ, 120 तक गया, 120 तक जाने के बाद नीचे आया 110 तक, फिर 150 गया, फिर 150 से नीचे आया 130 तक। तो आप देख सकते हो हर बार ये जो स्टॉक है इसके प्रीवियस प्राइस के नीचे नहीं जा रहा है। फर्स्ट प्राइस वाज 100, देन इट वेंट टू 120, देन जब वो नीचे आया तो ये 100 से नीचे नहीं गया। तो ये ऐसे चलता है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। तो ये जो भी लो बना है, ये जो भी लो बना है, ये जो भी लो बना है, दिस इज कॉल्ड एज पुल बैक। इसको टेक्निकल एनालिसिस में कहते हैं पुल बैक। इज इट क्लियर? इट इज कॉल्ड एज पुल बैक, ओके। सो काफ़ी सारे लोग इसमें
एंट्री कैसे करते हैं, ये ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर नीचे आने के बाद ये एक ऐसा मार्किंग करके रख देते हैं, जैसे ही ये इसके ऊपर जाएगा वो यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, फिर ये ऊपर जाएगा फिर से नीचे आएगा, फिर वो लोग क्या करेंगे इधर एक लेवल को मार्क करके रखेंगे, जैसे ही इस लेवल के ऊपर जाएगा वैसे वहाँ पे एंट्री कर लेंगे। जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करके कुछ कंसेप्ट है, जब हम वो करेंगे तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि स्टॉक कहाँ से रिवर्स हो सकता है, स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। जब हम ये सारी चीज़ सीखेंगे तो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि किसी ने आपको पूछा कि ये स्टॉक है कहाँ तक जा सकता है, तो आप उसको आंसर दे पाएंगे कहाँ तक जा सकता है। अगर वो कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है तो अगर आपको कोई पूछे कहाँ तक नीचे गिर सकता है, तब आप उसको कह सकेंगे कि हाँ यहाँ तक नीचे गिर सकता है, बिकॉज टेक्निकल सपोर्ट वहाँ तक है। पूरा CNBC पे जितने भी रिसर्च एनालिस्ट है वो सारे रिसर्च एनालिस्ट टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ही एनालिसिस करते हैं, एंड देन दे टेल देयर एक्सपर्ट, जो वो एक्सपर्ट बन जाते हैं, एंड देन दे टेल देयर ऑडियंस दैट दिस स्टॉक का सपोर्ट इधर है, दिस स्टॉक का रेजिस्टेंस इधर है, यहाँ से मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बात करते हैं। तो वो भी हम सीखेंगे कि कैसे ये लोग कहते हैं, वैसे एनालिसिस हम भी सीख पाए। दैट ऑल्सो विल बी लर्निंग। नाउ देर इज अ ट्रेंड नंबर 1 विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस विच इज कॉल्ड एज द अप ट्रेंड। देर इज ट्रेंड नंबर 2 विच इज कॉल्ड एज साइडवेज। साइडवेज में होता है क्या, देखो ये साइडवेज में ऐसा ऐसा एक ही जगह पे घूमता है ये, तो ये एक रेंज बना दिया स्टॉक ने, मतलब स्टॉक इधर से ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर इधर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, या ऐसे 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 इसी रेंज में घूम रहा है। दैट इज अवर ट्रेंड नंबर 2 and that is called as sideways trend. The trend number 1 was uptrend. Whenever the stock is going on an uptrend, remember that buyers are more aggressive. वो नीचे गिरेगा तो उसको स्टॉक को ऊपर लेके जाएंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली एक स्टॉक बताता हूँ, चलो अभी आपको पता चल जाएगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलो एक चार्ट ही ओपन कर लेते एंड आपको बता ही देता हूँ स्टॉक। फिर ये सब क्या है, सब हम सीखेंगे अभी, ये सब पॉइंट्स हमको सीखना है डिटेल में। आई विल टेल यू दिस, डोंट वरी अबाउट इट। सब कुछ सीखा, सब कुछ सिखाऊंगा, एवरीथिंग विल बी लर्निंग। ठीक है, अभी फिलहाल एक सेकंड जरा देना मुझे, ये थोड़ा लोड हो रहा है, ये कुछ मेरे डेटाज है। ठीक है चलो, एक स्टॉक बताने से अच्छा एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ट्रेंड अभी फिलहाल, चलो आपको भी ट्रेंड पता चलेगा। दिस अप डाउन, ये कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड? अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड? डाउन ट्रेंड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू। एलरॉन, योगेश, सेजल, कृष्णा, डाउन ट्रेंड। वेरी नाइस वेरी नाइस। देखो आपको पता चल गया ये डाउन ट्रेंड है। ठीक हो, अभी देखो, अभी का मार्केट देखो आप। रुको, इसको हम ना थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे गया मैं, इसको थोड़ा रीसेट कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अप डाउन अप डाउन अप, कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड? अप ट्रेंड। वेरी गुड वेरी गुड। पहले ट्रेंड ही पता चलना चाहिए। अगर आपको ट्रेंड समझ में आ गया ना तो आपको कोई टेंशन ही नहीं आएगा। ऐसा अभी फिलहाल मैं निफ्टी में दिखा रहा हूँ, हम किसी भी स्टॉक्स में देख सकते हैं, मैं स्टॉक्स में भी दिखाऊंगा कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड है, राइट राइट। चलो ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो एक अभी स्टॉक का देखते हैं। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, बॉक्स कौन सा ट्रेंड है, विच ट्रेंड, विच ट्रेंड? अमेजिंग अमेजिंग, वेरी नाइस वेरी नाइस। साइड ट्रेंड। ठीक है, साइड ट्रेंड, साइडवेज, साइडवेज, वेरी गुड वेरी गुड। दिस इज कॉल्ड साइडवेज ट्रेंड, साइडवेज। ठीक है, ये साइडवेज है, ये कुछ नहीं कर रहा है, देखो ये इधर 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 घूम रहा है। ठीक है, अभी देखो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, इधर चेंज हो गया ट्रेंड, अप ट्रेंड, परफेक्ट। फिर से देखो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, इधर से डाउन आएगा फिर से अप। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड।
अनलेस एंड अनटिल यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड यू कैनॉट मूव फर्दर. कैंडल स्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेंड को फाइंड करना. आप ट्रेंड को फाइंड करना सीख गए तो आप आधी चीज़ें तो उधर ही सीख गए. ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, चलो और एक मैं मतलब आपको समझने के लिए वैसे स्टॉक्स ले रहा हूँ. ठीक है, थोड़ा सा अभी लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाते हैं. ठीक है, एंट्री कैसे बनानी है, कौन से प्राइस में बनानी है, मैं आपको ऐसा सिस्टम सिखाऊंगा ना, आप पूरा 15 दिन के कोर्स के बाद सोचेंगे कि अरे हमको पहले क्यों नहीं आ गया ये सब. ये स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा है पता है? 10,321. 10,321 कितना? 10,000 एक स्टॉक का प्राइस. एंड जो हमने सिस्टम, मैंने जो बनाया सिस्टम और जो हमने सिस्टम में जो सिखाता हूँ बेसिकली, उस सिस्टम में ये स्टॉक का प्राइस था 1200 रुपया. तब हमें ये स्टॉक मिला था हमारे सिस्टम में. 1200 का स्टॉक 10,500 हो गया. We will be learning this. Don't worry, I will teach you all this. Right? First of all, trend. चलो ट्रेंड बताएंगे आप लोग अभी मुझे. अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन. कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड. चलो वेरी नाइस, वेरी नाइस. अप ट्रेंड है, चलो अप ट्रेंड है. ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा साइडवेज वाला ट्रेंड लेते हैं. साइडवेज वाला ट्रेंड. एक सेकेंड, ये डिस्प्ले हो जाएगा. वो मेरा थोड़ा स्टडी रहता है उसके ऊपर, तो वो आ जाएगा. एक सेकेंड, मैं इधर ड्रॉ ही कर लेता हूँ. विच ट्रेंड? वेरी नाइस. ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल, राइट? ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल. हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड नाउ? yes it is sideways, yes it is sideways. Very nice, very nice, very nice. See the name of the stock, Reliance. Now very important sentence I am going to tell you. Very important sentence. Just try to write this sentence anywhere or keep it in your mind forever and ever, and that is, always try to enter any stock when it is in uptrend. Always try to enter any stock which is in uptrend. Do not buy stocks whether it is in sideways trend or downtrend. मतलब गिरते हुए स्टॉक को बाय नहीं करना है, साइडवेज वाले स्टॉक को बाय नहीं करना है. सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड वाले स्टॉक को ही आपको बाय करने के बारे में सोचना है. बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, एक एक्सपर्ट्स जो है टेक्निकल एनालिसिस के, उन्होंने कहा है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड. ट्रेंड इज योर फ्रेंड. फॉलो द ट्रेंड अंटिल इट बेंड. You are getting what I am trying to tell you. चलो और एक स्टॉक देखते हैं. आप मुझे बताना अभी, क्या हम इस स्टॉक को बाय करने के बारे में सोचेंगे या नहीं? आ गया आपको स्टॉक मार्केट. और क्या सीखना है स्टॉक मार्केट में? आपको पता चल गया ना अभी कौन से स्टॉक को बाय करना है, कौन से नहीं करना है. बस उतना पता चल गया. फिर एंट्री एग्जिट वो सब तो हम सीख ही जाएंगे. ये कौन सा स्टॉक है? ये है येस बैंक. यहाँ पे साइडवेज था, डाउन 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 एंड साइडवेज, पूरा साइडवेज. तो हमारा रूल नंबर 1 सिर्फ सिंपल, इफ द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, think of buying it. Do not directly enter. We will be learning the process of entry exit later on. If it is downtrend, do not enter. Cross mark, cross mark, cross mark. If it is in sideways,
डू नॉट एंटर, डू नॉट एंटर, डू नॉट एंटर, इतना आपके पास दिमाग में फिट रखो। फिर आपको कोई भी बोले कि यस बैंक 21 का 50 हो जाएगा, उसको बोलने का जिस दिन उसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा ना, ऊपर का अप ट्रेंड होएगा ना, तो पहले मैं बाय करेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग है। चलो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो दिस इज जस्ट मैंने आपको प्रैक्टिकली चार्ट्स पे बता दिया था कि ट्रेंड समझ में आए। ऐसे आप बहुत सारे ट्रेंड को प्रैक्टिस करने के लिए चार्ट्स देख सकते हैं। तो ये चार्ट्स के बारे में मैं और थोड़ा डिटेल पढ़ाऊंगा आपको, कल हम मिलेंगे पर्सनली, तब हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सीधा चलते हैं अभी पीपीटी में फिर से एक बार। ध्यान से, अब थोड़ा सा एक एडवांस उसके आगे। whenever there is sideways trend, साइडवेज, वो साइडवेज ट्रेंड में हमेशा बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो एक तो एक्यूमुलेट करते हैं या वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये एक्यूमुलेट और डिस्ट्रीब्यूट क्या है बता दो। समझो मार्केट गिर रहा है, स्टॉक गिर रहा है, गिरते गिरते स्टॉक रुक गया और एक ही जगह पे घूम रहा है, एक ही जगह पे घूम रहा है। इसका मतलब आपको याद रखना है कि when the stock was falling, that was downtrend, and now the stock is not falling, now the stock is moving in the same direction, and we have learned that whenever the stock is in the same area, that is called as sideways market or sideways trend. तो remember there is one more point is in this sideways trend, that sideways trend को हम accumulation phase बोलते हैं, because इस accumulation phase में बहुत सारे बड़े players छोटे छोटे क्वांटिटी में बाय करते जा रहे हैं, और जिस दिन वो बड़ा क्वांटिटी ऐड करेंगे उस दिन मार्केट इस बॉक्स के बाहर ट्रेड करना स्टार्ट हो जाएगा और हमें ट्रेड पता चल जाएगा कि अभी ट्रेंड जो है वो ऊपर का होने जा रहा है। दिस इज द कंडीशन एज पर द पॉइंट। रिपीट करता हूँ फिर से एक बार, कोई स्टॉक अगर नीचे गिर रहा है, नीचे गिरने के बाद नीचे गिर रहा है, कोई स्टॉक क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिरने के बाद एक ही एरिया में ट्रेड होना स्टार्ट हो गया। देन आफ्टर ट्रेडिंग इन दिस एरिया, इफ़ द बिग प्लेयर्स आर एक्यूमुलेटिंग इन दिस, हमें कैसे पता चलेगा वो लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं? हमें डायरेक्टली पता नहीं चलेगा जब तक वो प्राइस इस बॉक्स के ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, दे आर ट्राइंग टू एक्यूमुलेट द स्टॉक, एंड आफ्टर दैट व्हेन द स्टॉक ब्रेक्स आउट ऑफ दिस, हमें पता चल जाएगा कि बड़े प्लेयर ने ट्रेंड को चेंज कर दिया है। फिर उसके बाद नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर से इधर जाके थोड़ा टाइम ऐसा कंसोलिडेट करेगा, दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। फिर इसको फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, फिर से ब्रेकआउट करेगा अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो। और ऊपर जाके ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के बाद नीचे चला गया, तो जब अगर ऊपर चला गया तो इसको हम क्या कहते हैं, मार्कअप फेस। यहाँ पे लिखा है देखो, मार्कअप फेस, ये मार्कअप फेस है। यहाँ पे फिर से एक्यूमुलेशन हुआ, फिर से ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे ऊपर जाने के बाद अगर वो ऊपर से नीचे आ गया तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फेस। मतलब यहाँ पे बड़े प्लेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद तुरंत नीचे आ गया स्टॉक। होता है ना कभी कभी, पहले छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं और एकदम से ऐसा बड़ा कैंडल, रेड कैंडल, ऐसा बड़ा सा रेड कैंडल बन जाएगा, एंड दैट इज़ द कंडीशन। तो whenever the stock is in sideways, it can be accumulation phase और it can be distribution phase। और accumulation होगा कि distribution होगा, वो धीरे धीरे आप जैसे एनालिसिस करेंगे वैसे आपको पता चल जाएगा कि whether it is accumulation phase और whether it is a distribution phase। तो this is the trend part which we have studied। I hope this is clear to everyone। तो ये था हमारा ट्रेंड पार्ट। ये है हमारे डिफरेंट टाइप्स के कैंडल्स। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं पीडीएफ भी शेयर करता हूँ। मैंने इसके पहले की पीडीएफ्स मैम के साथ शेयर किए हैं। आई होप यू हैव गॉट दोज पीडीएफ्स। अगर नहीं मिले हैं तो मैम को बोलिए, मैंने मैम को दे दिए थे ऑलरेडी, तो यू माइट हैव रिसीव्ड दैट पीडीएफ्स एंड दैट ऑल्सो आई विल बी गिविंग यू। ठीक है, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, नो प्रॉब्लम इन दैट। देखो ऐसा एक बिग वाइट का मतलब बिग ग्रीन, कुछ लोग वाइट बनाते हैं,
कुछ लोग ग्रीन बनाते हैं। ब्लैक का मतलब रेड है, हाँ समझ देना। वाइट का मतलब ग्रीन है, नए नए सॉफ्टवेयर्स में ग्रीन और रेड ही हुआ है। ब्लैक का मतलब है रेड। अगर आपको ऐसा कैंडल मिलता है कि ऐसा वाला है कि और ऐसा सीधा लाइन है, दैट इज कॉल्ड एज डोजी कैंडल। दैट इज कॉल्ड एज डोजी कैंडल। डोजी इज इनडिसिसिव कैंडल, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है डोजी। देन अगर आपको ऐसा कैंडल मिलता है कैंडल स्टिक पे, तो दैट इज कॉल्ड एज ड्रैगन फ्लाई। आप बोलेंगे सर ये सारे नाम हमको याद कैसे रहेंगे? याद करने भी नहीं है, याद करने भी नहीं है, आपको सिर्फ इसको याद रखना है। किसी ने आपसे अगर पूछा रहे कौन सा कैंडल बना है, तो आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ वाई आई एम टीचिंग यू, अदरवाइज इसका कुछ काम ही नहीं है ट्रेडिंग में। ये कैंडल का आपको पता नहीं होंगे तभी भी आप ट्रेड कर पाएंगे, अगर सिस्टम को फॉलो करेंगे। अगर ऐसा कैंडल बनता है दैट इज़ कॉल्ड ड्रैगन फ्लाई। अगर उल्टा कैंडल बनता है दैट इज़ कॉल्ड ग्रेवस्टोन डोजी। अगर एक सीधा ऐसा कैंडल जाके ऐसा हैमर टाइप बनता है ऊपर, तो हैंगिंग मैन बोलते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे, इसमें से मैं 6 कैंडल स्टिक पढ़ाऊँगा आपको। फिर उसके बाद है हैमर कैंडल। हैमर मतलब हथौड़ा, हथौड़े का कैंडल। फिर उल्टा बनेगा तो इन्वर्टेड हैमर, फिर इन्वर्टेड ब्लैक हैमर, फिर स्पिनिंग टॉप, शेवन हेड, शेवन बॉटम और मारूबुजू। मारूबुजू एक इंपॉर्टेंट कैंडल है। देखो मारूबुजू को ऊपर ऐसी विक और नीचे ऐसी विक नहीं है। अगर ऊपर और नीचे अगर विक नहीं रहेगी, जैसे ऊपर अगर विक नहीं है, नीचे अगर विक नहीं है और सिर्फ उसमें बॉडी है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज मारूबुजू कैंडल। उसको हम किंग कैंडल कहते हैं या मारूबुजू कैंडल भी कहते हैं। ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कल के पार्ट में। सो डिटेल में विल बी लर्निंग दिस टुमारो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिटेल्स रिलेटेड विद द टेक्निकल पार्ट एज कंसर्न। तो टेक्निकल का एक बेसिक मैंने आज समझाया है। आई होप कि आपको बेसिक के सारी चीज़ें क्लियर हुई है। अप टिल नाउ दिस इज़ क्लियर टू एवरी वन। इज़ इट क्लियर दिस मच टू एवरी वन? Have you understood what we have learned today? Was the session interesting? जिनको भी बेसिक्स पता था, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर लवली कमेंट्स। So the reason behind showing you all these basics today, because if you are cleared with the basics, then for the tomorrow's session it becomes very easy for me to explain you all those points which we are going to learn tomorrow. तो हम कल बाकी के भी चीज़ें सीखेंगे। एक जस्ट वन टाइम वी विल बी हैविंग अ रिविजन ऑफ द बेसिक्स टुमारो, एंड देन वी विल बी हैविंग डिस्कशन ऑन द वेरियस टाइप्स ऑफ पॉइंट्स ऑल्सो. तो वी हैव completed some lectures in our online mode, and since we have completed something in the online mode, even if you have any kind of queries which we have learned up till now, so just try to note the queries, bring it tomorrow, so that we can have detailed discussion on those queries. And in spite of all this also, if you have any kind of queries which you think that I will be a better person to answer your queries, then most welcome. Tomorrow we'll be discussing on those queries also. First of all, we will discuss about the practical aspects of the technical analysis. How can we go much detail in the concept of technical analysis, which will be the various steps of candlestick patterns which we will be using, and how can we overall use this price action, how can we overall do entry, do exit, and what will be our risk management strategy, what will be our risk management process, and how to calculate the quantity, which already have informed to you in the first session that we will be able to calculate the quantity. I will be providing you a specific one Excel where if you put just the details of the stock, you will get the quantity automatically calculated, and that will be given to you, which will be with you forever and ever. वो आपको मैं गूगल ड्राइव की शीट की लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जो चाहे उसमें एडिट कर सकते हैं, और दैट विल बी फ्री फॉर ऑल ऑफ यू, राइट. तो दैट ऑल्सो आई विल बी गिविंग यू. आपको क्वांटिटी गिनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. सारा कुछ मैंने करके रखा है, सारा फॉर्मूलाज डाल के रखा है. आपको सिर्फ उसमें एंट्री प्राइस डालना है, एग्जिट प्राइस डालना है. एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस कैसे डालते हैं वो हम सीखेंगे. उसके बाद में आपको रिस्क मैनेजमेंट की शीट दूंगा, राइट. So I hope you have enjoyed today's session. It was interesting, and we will be meeting now tomorrow in the offline session. I guess 11 o'clock timing ma'am has given, so I will be speaking with ma'am one more time, and we will have a discussion on the timing, and ma'am will be letting you the timing about tomorrow. Okay, I hope you all are eager to meet
tomorrow we will be having discussion on technical analysis part. Okay, thank you very much from my side. If you have any kind of queries up till now, कुछ अगर डाउट्स है किसी को तो एक बार चैट सेक्शन में आप डाल सकेंगे, तो आई विल बी आंसरिंग योर क्वेरीज. अदरवाइज अगर आज कुछ डाउट्स नहीं है तो कल अगर रहेंगे तो कल भी लेके आ सकते हैं. ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. चलो, थैंक यू वेरी मच, क्लोज करता हूँ सेशन. बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर.